Bedi sir would be starting the session soon. We are extremely sorry we got delayed. Then we can take up again. And we are planning to have a series of sessions with sir. तो आज एक सर सेशन आपसे एनिमेशन के ऊपर लेने वाले हैं. So how to make PPT animation. Hand over the things to Bedi sir. Bedi sir, would you be starting? Yes, sir. Please. Please. Up. Aye. Yes. Yes, sir. Please start the session. So good evening to all. So today I will teach. I will tell, not teach you. I cannot teach because you are the teachers already. So I can tell you how to use the PowerPoint presentation. There are so many platforms that you can use, but I prefer PowerPoint because there are so many options in this. That's why I'm using this. So I can share it with you. Actually, I'm an accountancy teacher, so I made so many PowerPoint presentations on accountancy also. Because accountancy को सब कहते हैं कि this is a dead subject, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते. So, but we can do so many things in this also. So first now first is how to make a circle, animated circle in this. So you can see this circle is being formed and it is coming one by one. 1, 2, 3, 4. Just the click of a mouse, you can make it. And it's very easy to make it. It's already given in the PowerPoint presentation, but how to use it, that's your option. So you can add more circles to it. You can delete the circles. Okay? So you can make it like this. If you want to make a circle, there are other designs also. I will tell you later on. Next one is, this is accounting cycle. So I have taken this diagram from the website. So you can use any from the website also. So I make this accounting cycle, financial transactions first, then you have to record in the journal, and journal case books also are given. So we can use this in any form, in business studies, in accountancy, in economics also, in mathematics. You can use it anywhere. Let me start it again. Yes, Santosh sir, it can be very well used in chemistry as well. Yes, chemistry, in everywhere you can use it. Yes. Because diagrams are everywhere, and even mathematics, there are accounting equations already built in the new PowerPoint. I think 2013 it's not there, but it is there in 2016. Yeah, definitely. PPT, what sir is explaining, PPT can definitely be used in lower classes as well. It can definitely be used in lower classes. Yeah, sir is trying. In any class, yes, in any class you can use it. It's your option. I'm telling you I'm using for accountancy only, but you can use it anywhere. Is it visible, sir? Now? Yeah. It is trying to show your screen, sir. So I was showing you this circle. You can draw this one thing. Second is this one I was telling you. So you can make this more interesting, and you can ask the students first, then you can write the answer. Filling the blanks की तरह भी use कर सकते हो आप. And like this, now this is the one I made, filling the blanks. So there start where bookkeeping ends. So you can ask the question from the students. Then with a click of a mouse, the answer will be appearing here. Second thing like this. So you can do. So it can be done in accountancy, business studies, in each and every subject. For the lower classes also, you can ask this. You can use this. Okay, तो हम इससे क्लास very simple, very simple animation बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं. पहले हम क्वेश्चन शो करें without the term, blank दें, बच्चों से responses लें, and then we show the answer. Now, if you use this PowerPoint presentation, so you can concentrate on the students only. Otherwise, हम board पे busy रह जाते हैं, लिखने में busy रह जाते थे.
If you are using the board at home also, still the teachers are using. So उसमें भी आप board पे लिखते रह जाते हैं. So now you can devote more time. So I made this filling blanks. You can use it. So I will tell you how to make it. Yes. Next one. Yes. Next one is I have made this revaluation account. Okay. So you can see this is the boxes are being shown here. So these boxes will be fade out or fly out one by one because I have given the animation to it also. So by making revaluation account, so from the question you can write first is provision for bad debts and by plant to creditors. So by click of a mouse, it will slide down. So this is another part of giving animation. First one was that it will appear. Second, it is disappearing. Next one is like this journal and journal is falling. First, the question is appearing. Left hand side में question आ रहा है. Then you can ask the students for the answer. After that, with the click of a mouse, your journal entry will appear. Then you can close it. So it's easy to use it. Once you made it, you can use it in any class. बार बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको कॉपीज में वो दोबारा शो नहीं करना पड़ेगा. तो you can do it. In second, receive cash 5,000 for bad debts. So second journal entry will be cash or bank account to bad debts. This one. Rent due to landlord, like this. So you can make it easily. So this is a pyramid. You can use it in any form. It's already given in the. So this is a question I have taken from admission of a partner. So अगर accountancy के teachers वहाँ हैं, they know how to make, how it is difficult to draw 3 items on a board. Board पे draw करो, या if you're using the like now these days you're using the registers. So register में भी ये तीनों formats draw करना काफी मुश्किल हो जाता है. So one side you can see the question is appearing. On the other side, first is revaluation account, then partners capital account, then balance sheet. All these 3 things on the same slide. Okay, so single slide के ऊपर आपका question भी आ गया and you can solve it. You can show the solution. This is very unique. Abhi sir, this is PPT. This is the PPT sir is using, and yes, sir is going to show you that also कैसे इसको करेंगे. But the point I am trying to simply say कि ये एक बहुत एक canvas पे आप सब चीज देख रहे हैं. You are seeing the question and how it is being solved. Then this can be used for any subject also. And for any subject. Any subject. So now sir will be also showing you how to do one by one. पहले हम PPT देखते हैं, then this entire all these things जो सर दिखा रहे हैं, this is all in PPT, no other software. कोई और yes, I am using our only PowerPoint presentation. There are so many features in the PowerPoint presentation. You have to explore. Yes. ये आपके ऊपर है कि how to explore it. ठीक है, जितने features में I can tell you the few features, but later on if you can create it. If you are अगर मैं किसी का मैंने देखा था I think 2004-5 में सर कुछ ना जैसे now we are using PDF, तो PDF वाला फॉर्मेट था, वो उन्होंने CDs बना के बेच रहे थे at that time. तो CD थी, CD में सिर्फ उनके solutions होते थे PDF फॉर्मेट में, तो student cannot get it. So from here you can do it. Now you can see if accountancy teachers are there, they can easily find out. Okay. First one is I am taking this from balance sheet. Liabilities. My first item is X capital, Y is capital. So I can simply transfer it to capital account by balance reading on the credit side. Second item I am taking from creditors. Yes, you can use this one also. Laser point. So second one is creditors. So if I click, then creditors will be shown in the balance sheet. So one by one items can be shown in these different 2 accounts, and one is balance sheet. Next one is journal reserve, like this journal reserve will appear. So now if you want to show the working notes, so you can see here working notes are appearing. Before that it was not there. If I click on the mouse, then
the working notes are appearing, sacrificing ratio, old ratio minus new ratio, like this. After that, it will disappear. Next one is workman compensation reserve. अच्छा, now you can see here I have star marks a few items. Star mark इसलिए किया because there are adjustment with it. So adjustment वाले it will be shown in the outer column, inner column, sorry. Now next one is cash in hand. Cash in hand will go to balance sheet, and I have shown it in the inner column because there are adjustments with it. So we have written in the inner column debtors, stock, building, machinery. So like this, you can see first all the items I am taking. Okay, I am not showing the all the thing. And now final. Now in the final, while doing calculation in accountancy, तो हम करते रहते हैं टोटल करो बच्चे ये करो, तो you can ask the students to do it. Normally के बोर्ड पे हम टीचर्स ही कर रहे होते हैं, so it's better to use it. So you can easily ask the student to do it. Then the students can verify with your solution. So this 14,000 will be divided, and this profit will be divided in the whole ratio, and it will be transferred to partners capital account. Then partners capital accounts are being closed. Now this is a capital adjustment question है, उसका 94 question है, उसका TS Grewal का sir का. So I have shown the working notes also. So you can get it working note total capital of X and Y like this. So you can easily show this. So ये देख लो, full question is on the one slide only. Although it will take around half to 1 hour to make it initially. If you wait one slide, then second slide is easier to make. You can simply copy and paste it. So I think sir accountancy teachers को तो ये clear हो गया होगा. हाँ, अब बस इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो मैं और भी दे रहा हूँ सर. I am taking another one also. ये चलो, this one is done. I am taking for economics का भी मैंने कुछ रखा था. So like this. अच्छा, one thing more thing you can convert into video. एक एक क्वेश्चन को वीडियो में कन्वर्ट करके you can send it to the students also. Now this is another way. के जर्नल का फॉर्मेट आ गया, ऊपर ट्रांजैक्शन आएगी, one by one transaction will be appearing. So first transaction आ गई, so bank account debit to this like this. Now first transaction पहले question आ गया ऊपर, then you can ask the students what will be the journal entries. After that you can click it and you will get you can show the solution one by one, like you are writing on the board, but now you have already typed it. No need to write it again and again in the new class. You can just take it this PPT and you can show it. Now first item has gone. Second entry आ गई ऊपर, he deposited 5,000 out of cash in the bank. So second entry will be this. You can use it for any subject. अगर वो आपका one word का कोई वो है, one sentence answers हैं, you can write the question ऊपर question appear होगा, then answer. It's not for especially for accountancy only. So ये देखो सर, एक और है कि मैंने ये क्वेश्चन जो है previously I was using this. Okay, you can give the question to the student, they can solve it. After that you can discuss it. Yes. With the students. हम अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, then we can discuss with. ये देखो इसमें आंसर चेक कर लेंगे उस चीज से. हाँ सर, ये देखो इसमें एक और क्वेश्चन था हमारा इसमें कि first you have to write down the journal entries, then you have to make the evaluation account. So first I have done the देखो पहले journal entries कर ली, all the journal entries have been done. After passing the journal entries, revaluation account कैसे बनाना है वो भी बच्चों को easily you can explain. Okay, journal entries से कैसे बनेगा. First entry is this.
I have taken that entry. तो entry को लेके you can easily tell them how to transfer these items to the revaluation account. एंट्री आ गई तो एंट्री को देख के ही बच्चे को आप समझा सकते हो कि फर्स्ट टू स्टॉक आएगा, देन टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो वन बाय वन यू कैन आस्क. वन मोर थिंग, यू कैन गिव इट विदाउट एनी थिंग रिटन इन ऑन इट. ठीक है, और बच्चों को बोलो फिल कर दो, तो दे कैन यू कैन यूज फॉर एज ए फिलिंग द ब्लैंक्स आल्सो. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ गया. नाउ मैं आपको उस पे तो ये अगर मैं इसको यूज करता हूँ क्लास में, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन 1 पीरियड ऑफ 40 मिनट्स. अच्छा, जबकि बोर्ड से हम सॉल्व करते हैं तो एक पीरियड में करीब करीब एक ही क्वेश्चन पूरा ढंग से हो पाता है. एक ही क्वेश्चन होता है सर. हाँ, उसको मिटाओ और लिखो और बार-बार मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है. बट दिस कैन बी डन फास्ट. बच्चे को भी आप इजीली दे कैन यूज इट सीट ना. कई बार हमारी हैंडराइटिंग हमारी कई बार बहुत अच्छी होती है तो बच्चों को समझ नहीं आती सर क्या लिखा था. तो वी कैन यूज. अच्छा, एक चीज और ये वाला देखो सर, इसको ये आ गया, क्वेश्चन आ गया, देन दिस इज द आंसर. Then again you can ask the question, then answer. Okay. Question, answer. So there are so many ways of presenting. Now sir, ये जो आप बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ये इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्लास को we can make very interactive. Yes, yes, sir. And any subject, we can show them the question. Yes, yes. And we can ask the students to type their answer in chat box or speak on the mic, and then we can show or we can ask one by one each child in the class also. एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, 2 से पूछा, फिर देन लाइक दैट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाउ ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स का सर, उन्होंने टीचर ने बना के दिया था मेरी. नाउ बजट लाइन, हाउ टू शो इट. देखो सर, फर्स्ट पॉइंट द दिस आई डोंट नो वेरी मच अबाउट इट, बट हाउ टू यूज दिस इन इकोनॉमिक्स इज एक बजट लाइन. जी. सो यू कैन easily explain. Okay, very nice. Then this line will appear. Okay. So this is the budget line और clear picture आ रही है, कोई हमारा टेढ़ा नहीं हो रही, line कोई वो नहीं हो रही, सिर्फ straight आ रहा है. You can draw the curves also, U shape जो हमारा होता है, I think U shape भी होता है कि नहीं? हाँ. So like this, you can use a table also. अब देखो इसमें unattainable, attainable. Okay. So ये lines है, graph. You can easily show the graphs. Okay. तो इकोनॉमिक्स में भी देख लो इसका यूज कितना है. Very nice, very nice. अच्छा, okay. ये एक और सर मैंने देखा, ये चार्ट, इफ यू वांट टू ड्रॉ द बार ग्राफ्स वगैरह, अगर आपने ड्रॉ करना है तो बार ग्राफ में देखो, फर्स्ट इज like this, it will appear. Then second, ये तो आपका सोशल स्टडीज में हो गया, इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी हो गया, स्टैट्स में और इसमें मैथ्स में भी हो गया, सब में यू कैन यूज इट एंड इट्स वेरी इजी टू यूज. If you want to show it category wise, you can do it with category wise. Let me explain this. देखो सर, इसमें आगा insert. Insert में आके यहाँ आना charts. Okay, now sir is explaining how to make these charts. How to make this हाँ, ये तो सबके लिए है ना. तो सब आप लोग सबसे पहले PPT में you go to insert. और इंसर्ट में जाने के बाद यू चूज द चार्ट. ठीक है सर. चार्ट. ओके. हाँ. तो आफ्टर चूजिंग द चार्ट, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर हियर. यू कैन टेक द पाई चार्ट आल्सो. इफ यू वांट टू यूज पाई चार्ट, यू कैन टेक द बार ग्राफ. हाँ. ठीक. अब जो नया आया सर, उसमें एक और जो PowerPoint नई प्रेजेंटेशन अपडेट करके, उसमें यू कैन यूज अ मैप आल्सो. ओके. If you want to show a particular map to the students, so you can use the map also, and you can get it highlighted the particular part. Okay. अगर हमें Delhi show करना है, where is Delhi, तो Delhi will be highlighted. You have to type only in the Google sheet.
उसके बाद एक Okay. शीट भी खुलेगी, तो हम्म, उसमें आपने टाइप कर दिया दिल्ली, तो दिल्ली विल बी हाईलाइटेड, हैदराबाद तो हैदराबाद विल बी हाईलाइटेड, यूएसए तो यूएसए विल बी हाईलाइटेड, कलर कोड आप यूज कर सकते हो। तो लाइक दिस एरिया वाला हो गया। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। स्टॉक का भी है, सरफेस, ये मैथ्स वगैरह के लिए भी सब है। जी अच्छा, जी। सपोज आई हैव टेकन दिस वन bar graph, so I am using this. अच्छा, now there are another options कि you want to use this one. ऊपर options हैं हमारी stack bar, 3D cluster bars, 3D stack bar, 3D 100% stack bar. So I'm using this one only. So it is being inserted. Okay. It is taking time. So after that, you just have to go to the animation part. Then after this, you will go to the animation, and if animation, by clicking the animation, you can give animation to it. उसके बाद फिर और आएगा कि it's not opening. So someone is asking, okay, how you have soft copy of T.S. Grewal? I didn't have any soft copy of T.S. Grewal. I just type it. मैं सिर्फ टाइप ही करता हूँ सर इसको. Don't have any soft copy. Okay, okay. अच्छा, ये देखो ये ग्राफ इसके ऊपर. So I have taken this graph. ठीक है. Now you can change the color also, chart style आपको जो चाहिए you can change this. अच्छा, one more thing, animations. Now go to the animation part. Go to animation. Animation में जाके you can select any one out of this. Suppose I am selecting flying. After this you have to go to the effect options. इसको click करना आपने. effect options है इसके साथ. From here you will get so many options. If you want to appear as an one object, by series, by category, or by element in series. Suppose I am clicking on by series. So how it will appear? Let me tell you. So it will appear like this. Okay, one by one, एक graph. One by one. So we can explain the students also simultaneously. Yes, yes. And second, if I am taking from as first I have taken by series, now by category. तो category में जाएंगे तो category 1, then category 2, then 3, then 4. Okay. Okay. हाँ. अपने पढ़ाने के साथ साथ जैसा हम बोलते जा रहे हैं, as we are speaking, yes, you can yes. show that. हाँ. If you want to show element in series, तो elements का भी है हमारे पास. There are so many options here, so you can use it according to your choice. तो ये एक उनका element आ रहा है. Suppose sales हो गया, then हमारे gross profit हो गया, then normal profit, whatever it is, you can use it. अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन है कि जब मैंने इंसर्ट किया था, मैं एक बार इसको सर दोबारा बताता हूँ. इंसर्ट में फर्स्ट गो टू चार्ट. चार्ट में आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, देन क्लिक ओके, देन इट विल बी इंसर्टेड. इसके साथ एक ऊपर जो सर गूगल शीट आती है जी, इन दैट यू कैन फिल योर वैल्यूज. ओके. आपके पास जो डाटा अवेलेबल है, यू कैन फिल दैट दोज वैल्यूज इन द ग्राफ, इन द गूगल शीट. सो उसके ऑटोमेटिकली आपका बार ग्राफ बन जाएगा. आपको कुछ भी हाथ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. नाउ लुक हियर,
दिस इज द कैटेगरी 1 है. सपोज आई वांट टू मेक इट कैटेगरी 1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, EST ले लेता हूँ. देन कैटेगरी 2 आई एम टेकिंग. तो आप स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट भी बनाते हैं, उसको भी यू कैन इजीली एनालाइज. तो यू कैन चेंज द दिस. देखो यहाँ BST चेंज हो गया. सिमिलरली आई कैन चेंज दिस वन ऑल्सो, और यू कैन चेंज दिस वन ऑल्सो. I want to make it 50. चेंज हो गया ना सर नीचे? डेफिनेटली सर. हाँ, वैल्यूज चेंज होने से ग्राफ अपने आप चेंज हो गया. 43. हाँ, तो आपको ग्राफ ड्रॉ, नो नीड टू ड्रॉ इट, सिंपली वैल्यूज पुट करो, ये अपने आप हो जाता. आई थिंक दिस पार्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. नाउ देयर आर अदर ऑप्शंस ऑफ ग्राफ आल्सो देयर. आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस वन. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और भी हैं. ठीक है. So now come to this one. How to draw this shape? Circle कैसे draw करना है? And इसमें already animation दिया हुआ है. Sir, how it will appear? I showed you ना? This one yes. I already showed now. Okay. Again you have to go to insert. Insert में जाके you have to select the shapes. ओके, ये सब पीपीटी पे चल रहा है. पीपीटी में आप इंसर्ट में जाएंगे, देन यू चूज द शेप्स, डिफरेंट शेप्स दैट यू वांट. शेप्स, और ये आ गया सर, सॉरी, शेप इज स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट, चूज स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक. सो दीज आर द लिस्ट व्हिच आर अपीयरिंग. तो आप देख लो कौन कौन सी चाहिए यू वांट एज ए लिस्ट. तो ये लिस्ट के ऑप्शंस है हमारे पास. सो मेनी ऑप्शंस आर हियर. एंड प्रोसेस चाहिए तो दिस इज द प्रोसेस. साइकिल है तो ये देखो आपके पास ऑलरेडी साइकिल्स हैं. सपोज आई वांट टू यूज दिस वन. अच्छा, वन मोर थिंग, यू कैन चेंज द कलर्स आल्सो. लेट मी यूज दिस वन हियर. It is PPT, ma'am. Sir is using PPT and he's trying to PowerPoint presentation. Yes. Which is easily available और सबके पास होती है ये सर. हाँ, MS Office में yes, very true. सर का वर्जन शायद 2013 है and yes. So here I want to insert this one. Insert. Go to insert. Then go to smart art. Smart art में से you can select anyone. Suppose I am taking this cycle. So, yeah. ठीक है सर. अब ये साइकिल आके आप इसको you can change the colors. If you want to change, you can change the colors from here. ये कलरफुल बन गया, आपके डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे सर. Then simply you have to fill that text. Text में आप जो मर्जी लिख लो. Suppose this is number 1. I am writing 1, 2. So it can be used in any subject. Yes, very true. जहाँ पे भी अपने को प्रोसेस दिखाना है, स्टेप्स दिखाने हैं, well, there it can be used definitely. Yeah. Now if इसको मैं एनिमेशन दे देता हूँ. अच्छा, while giving animation first you have to select this box. Select करके then float in. So if I select this box and float in, इसमें ये सब एक ही बार अपीयर होंगे. Then go to effect options. Effect options में जाके you have to select all at once or one by one. If I select as in one object, so all will appear in one go. If I select one by one,
So how it will appear? Now you can see first box, second box, third circle, fourth, fifth, like this. आपको सिर्फ उसमें अपना मेथड टाइप करना है एंड यू हैव टू एनिमेट इट इजी टू यूज. इज इट सर कोई डाउट इसमें पर्टिकुलर स्लाइड में, एनी डाउट? नहीं, इसमें सर वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर सर्कल्स, अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये सर इसको जैसे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. अच्छा, कॉपी पेस्ट वाला. हाँ, कॉपी पेस्ट. और मैं ख्याल से कंट्रोल डी से भी हो जाएगा. कंट्रोल डी से ये पूरी फिगर दोबारा बन गया. So you can increase the number of circles as your choice. सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. You have to select. अच्छा. Suppose I want to select this box. So Control C, then Control V. So 5 is the 5 double हो गए. Now I want to double 3 only. So 3 को I select Control C, Control V. Sorry. Okay. So now you can see 3 double. So animation इसमें अपने आप आपको बार बार एनिमेशन नहीं देना. एनिमेशन ऑलरेडी इसमें आ गया. Now you can see how it will appear. Number 1, like this. You can change the shape also if you want. Don't want to this. If you want to change the shape, you can change the shape also. फिर वही वापस जाना पड़ेगा. इंसर्ट फ्रॉम शेप्स. You can take this one. तो पहले वाला हटा दिया, ये वाला इसमें आएगा. अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बता दूं. चलो वो लेटर ऑन. So circle का हो गया सर. Circle clear है? जी. Circle. Now come to this filling the blanks. How to give animation to the blanks? हाँ, ये तो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है सर. ये क्लास में इंटरेक्टिव करने के लिए पीपीटी बना दे हम फिल इन द ब्लैंक्स की, एंड देन वी कैन मेक द क्लास वेरी इंटरेक्टिव. So इसकी मैं एनिमेशंस पहले हटा देता हूँ. इसका कॉपी करके स्लाइड. नहीं, आई एम रिमूविंग द एनिमेशंस. आई हैव कॉपीड. ओके, नाउ ये देखो, अब इसमें सर एनिमेशंस नहीं है. ओके, सिर्फ इसमें है ओनली 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. देयर आर नो एनिमेशंस. ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है मैंने. ठीक है. नाउ हाउ टू यूज दिस. देखो, you can see this is the another box which is appearing. ठीक है. First you will type this filling the blanks. Shall I do it from the scratch or teachers can do it? नहीं, type करना हमने blank. First you have to type blank only. ठीक है. Without the answer. You have to leave this part. हाँ, leave this part as blank. Then you can type anywhere. How to type? First go to insert box. Insert box में text box यहाँ भी आता है, और second shapes में भी हमारा text box आता है. सर shapes में जाके you can select this. जी. ठीक है. Either you can use the text box if it is appearing here, or you can select from the shapes also. क्योंकि I think previous जो हमारी versions है उसमें शायद यहीं पे मिलेगा आपको. So you can use it. So if I am taking from here, then you have to click anywhere outside this. कहीं भी आपको क्लिक करना है like this. So now I can write accounting. Okay. उसका आंसर वो अलग से बॉक्स बना के उसमें अलग से, हाँ, अलग से बॉक्स बना के कर लिया. Then
I will take this box. ड्रैग करते हुए उसको हाँ, ड्रैग करके यहाँ ले. ओके. If you want to show it separately, you can make it bold. हाँ, कलर चेंज You कर can सकते हैं आप. change कर दो आप. हाँ, underline कर सकते हो if you want to show it separate. Now you have to give animation the main part. Go to the animations. Then select this box, already selected. Then you have to select anything from here. Suppose I am selecting this line. So it has been selected. Now you can see number 8 is appearing here. But I want it to be appear in the first number. So click on this, it will be highlighted. Then you can change, reorder animation. You can change the animation here. So now it will be changed to 1. One option is this. Second option, you can go to the animation pane. So this pane will be appearing. Let me change this to 1 again. Now it is appearing at 8 number accounting. Okay. So what I can do, 8 box ko we have to drag it to the number 1. So wherever you want, it will go. So either you can अगर आपके यहाँ पे आ रहा है reorder animation, you can use this feature, or just click on the add animation pane and it will be appearing. So you can change the order accordingly. Either you can drag or you can use this option. ये वाली option है यहाँ पे भी आ रही है. Okay. So आपने इसको animation, इसका तो हो गया animation. Now how it will appear? पहले ये आ गया देखो blank. Now देखो ये वाला जो फर्स्ट ये जो मैंने इधर लिखा था अकाउंटिंग, ये वही रह गया because I didn't give animation to it, तो ये नहीं आया. So just click on the mouse and an accounting will appear. So second में there is no animation, third में no animation, fourth में no animation, but fifth में there is animation. So if I click on this, so this will appear. Sixth में ये आ जाएगा. Like this, you can easily give animation to it. Okay. और once you made it, it is forever. It will be your asset. तो सर इसके परमानेंट आपका बन गया. तो इसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले हम ब्लैंक मतलब विदाउट आंसर अपना फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन टाइप कर लें. वी डू दैट. हाँ जी. एंड देन एक अलग से बॉक्स बना के वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर उसका आंसर बनाए और उस आंसर को फिर ड्रैग करके हम यहाँ ले आए. ठीक है. दिस इज व्हाट यू मीन. एंड देन उसको फिर हम एनिमेशन दे दें जो हम चाहते हैं देना. यस. दिस इज व्हाट. ओके. एंड सेकेंड ऑप्शन, इसी का मैं एक और बनाता हूँ अगर टीचर्स को थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो. सेकेंड ऑप्शन इज सपोज ये वाला जैसे सर ये इंटरनल है. ठीक है. एंड देयर इज नो एनिमेशन टू इट. मैंने ये दिखा देता हूँ एक बारी जी. इसमें एनिमेशन नहीं है इंटरनल में. So I want to use animation also. So what I can do, simply go to the insert में जाके then go to shape. जी. You can select any shape. जी. It's better to take rectangle. I can draw this triangle over here. Okay. ठीक है सर. जी. Now अब इसका कलर चेंज कर देते हैं according to this. जी. शेप आउटलाइन इसकी हम कर देते हैं. शेप फिल जो है यू कैन चेंज द कलर. ये कलर है इसका. हाँ ये. एंड शेप आउटलाइन में भी हम ये कलर दे देते हैं. नाउ यू कैन सी सर ये बॉक्स अभी ऊपर वाला छुप गया तो उसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ. ओके. ठीक है. नाउ ये छुप गया सर. क्लियर. नाउ गो टू द एनिमेशन
और इसको सिलेक्ट करके यू हैव टू गिव एनिमेशन। ओके, तो वो बॉक्स हट जाएगा। हाँ, अब इसमें बॉक्स को हमने फ्लाई आउट करना है, तो इसमें एनिमेशन जो हम देंगे एग्जिट वाली देंगे, तो इसको आप सिलेक्ट करोगे तो ये एग्जिट वाली आ जाएंगी। ओके, तो एग्जिट वाले तरीका, में आपके ये पास वाला तरीका आपका ये है कि आपने उसको आंसर को हाइड किया हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, आप उसके ऊपर से वो बॉक्स हटा देंगे तो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, फाइन। अब ये देखो सर, ये कैसा है, इसमें आएगा फर्स्ट वाले में तो हमारा आ गया अकाउंटिंग, ठीक है। अभी मैंने उसका ऑर्डर चेंज नहीं किया था सर, इसलिए वो ना 10th के बाद ही आएगा। I have to change the order also. तो समझना है बस। Now you can see, हाँ, now you can see that box ये चला गया। क्लिक किया, बॉक्स चला आ गया। तो you can use this option also. तो ये जरूरी नहीं किसी एक इसको ही आपने fill the blanks in this, अगर आप इस पे में कर रहे हो तो you can type whole thing in one go. No need to make extra box. Suppose I want to put animation here. अगर मैं business entity के ऊपर देना चाहता हूँ तो I can select this box. So I can put insert में जाके first go to insert, take any shape. Suppose I am taking rectangle ही ले लेते हैं. So now you can, ये हो गया। Then you can change the color. Color आप जरूर change कर दो, ये आ गया इसका, ठीक है। Now इसकी आउटलाइन भी हमारी हो गई। After this go to animation. Animations में जाके again you can give any animation, float in, इसमें भी वही वाला दे देते हैं, fly out, wipe out, इसको मैं now after giving animation 10 नंबर है इसका, तो I want to change the order, तो इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ। ओके, तो 1 नंबर, सेकेंड हमारा ये देखो सर आ जी, बिजनेस एंटिटी अपीयर हो गया। फर्स्ट देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, here nothing is visible, so if you click so it's easy. So ये दोगे इसका, you can use it anywhere in for any subject. I think this part is clear to everyone sir, कोई डाउट? हाँ, नहीं ठीक है सर, बढ़िया। अब ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है यही मैंने यूज किया हुआ है नेक्स्ट में। ये देखो these are the boxes appearing. तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि डेबिट साइड क्या आना है, क्रेडिट साइड क्या आना है, तो यू कैन इजीली आस्क। आई हैव गिवन द ऑर्डर आल्सो, देखो 1 3 4, यू कैन चेंज द ऑर्डर। तो बाय क्लिकिंग ऑन दिस, तो फर्स्ट आइटम विल अपीयर, ये देखो 1 by 1 आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो लाइक दिस, अगर आपको वो बॉक्सेस इंसर्ट करके इट्स इजियर टू मेक गिव एनिमेशन। इसको कैसे एनिमेशन दिया है मैंने, फर्स्ट आई टाइप्ड इट, देन आई पुट द बॉक्सेस हियर। ये देखो ये बॉक्सेस इसके ऊपर डाले हुए मैंने। फर्स्ट आई टाइप द मैटर। तो सर ये क्लास में अगर क्विज वगैरह लेना है तो उसके भी लिए बहुत बढ़िया है। जी। हाँ, आफ्टर दिस देखो बॉक्सेस मैंने ले लिए, देन इसके बाद यू कैन गिव द एनिमेशन। एनिमेशंस में देख लो ये आपको एनिमेशंस है, देन यू कैन प्लेस इट ऑन द, ठीक है। अच्छा सर इससे एक और मैं बता देता हूँ कि कई बार हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं और मैटर हम टाइप करते हैं तो वो मैटर जो है बॉक्सेस के बीच में छुप जाता है। हाँ, तो उसका क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बता देता हूँ।
सर ये एक आपने बॉक्स में रिवॉल्यूशन कैसे दिया, जैसे पहले आपने पूरा टाइप कर लिया और उसके ऊपर ये बॉक्सेस आपने इंसर्ट किए, तो हाँ जी, है ना, ये बॉक्स कहाँ से लिया आपने, एक बार बता दीजिए, कुछ पूछे ये बॉक्स आपने कहाँ से लिया? मैं इनको डिलीट कर, बॉक्सेस है मैंने वही इंसर्ट से लिए हैं। इंसर्ट से, इंसर्ट में जाके यू कैन टेक द शेप लाइक दिस। तो ये पहले आप टाइप कर लो। You can take the PDF also, sir. No need to type it. If you have any solution, रेडीमेड, हाँ उसको हाइड कर दें। हाँ PDF फाइल को आप इसमें कॉपी पेस्ट कर लो, then you can hide it. अब first go to insert. Insert में जाके you can use any shape from here. हाँ, तो इसमें मैं इसको ये ले लेता हूँ। Then आप इसके ऊपर लाके उतने साइज के आप इसको बना। ओके, ठीक है। Then you can change the color. ये कलर यहाँ से हो गया इसका चेंज। आउटलाइन भी इसकी ये दे देते हैं। अच्छा, अब देखो सर ये वाला जो है ये दिख नहीं रहा। सपोज मैंने नाउ दिस वन यू कैन गिव द एनिमेशन। अच्छा मैं वो बाद में बताता हूँ। यू नाउ यू कैन गिव द एनिमेशन टू इट, फ्लोटिंग। तो ये एनिमेशन हो गई। नाउ यू कैन सी हाउ इट विल अपीयर। सो ये पूरा आपके पास टेबल आ गया जी। आप देखो इसमें एनिमेशन जो मैंने दी थी, एनिमेशन रॉन्गली आई गेव इट फ्लाई इन, इट शुड बी फ्लाई आउट। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है। इफ यू आर टेकिंग दिस, तो मैं हटा देता हूँ इसको जी। यू हैव टू गिव फ्लाई आउट वाली मतलब एग्जिट वाले। एग्जिट वाले, हाँ, ये एग्जिट वाली शेप्स अलग है जी। तो यू कैन टेक एनी वन। सपोज आई वांट टू टेक डिसअपीयर। तो नाउ इफ आई प्ले इट, अब देखो ये हाइड है, दिस पार्ट इज हाइडेड। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया। ये देखो ये हाइड हो गया। सो इफ आई क्लिक ऑन द माउस, क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया, अनहाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग मैं बता रहा हूँ। ये कई बार हम टाइप करते हैं एंड वी वांट टू पुट इन द बॉक्स। सपोज मैं एक और ले लेता हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब ये देखो ये आ गया, हाउ टू ब्रिंग फॉरवर्ड द टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया पहले, ठीक है। नाउ आई वांट टू पुट इट इन सम शेप। So first I will go to the insert. Insert में जाके I will take the shapes. I can take any shape. Suppose I take this one. Yeah. So ये मैंने shape बना। Now you see कि इसमें कलर आ रहे हैं और वो टेक्स्ट जो है हाइड हो गया, ठीक है ना सर। If I want to change the color, देखो कलर मैंने चेंज भी कर दिया तभी वो हाइड रहेगा। So you can go here। यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रही है, bring forward, send backward। तो bring forward में अगर आएगा तो bring forward में अगर करता हूँ तो ये bring to front। अब ये वाला बॉक्स हाईलाइट है ना, इस बॉक्स को हमने बैक पीछे भेजना है, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया। bring forward में ये नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी फॉरवर्ड है। ये आ गया सेंड बैकवर्ड, तो सेंड टू बैक। तो आप देखो टेक्स्ट आ गया, अपीयर हो गया। ठीक बात। सो ये उनके लिए है कि सपोज यू वांट टू गिव शेप टू एनी टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप कोई शेप डालते हो तो बॉक्स जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा, बट यू कैन टेक हियर। और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो यू कैन कम हियर एंड अरेंज में भी आप कर सकते हो। अरेंज में भी आप इसको अलाइन वगैरह कर सकते हो। ये ऑप्शन तभी आएगी, अभी हाईलाइट नहीं हो रही। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बॉक्स देन इट विल बी हाईलाइटेड। या अब देखो आई वांट टू सेंड इट टू बैक, तो ये देखो हाइड हो गया।
ठीक है। अच्छा, ये वाला एक था जो जर्नल एंट्रीज वाला मैंने बताया था। अच्छा, हाउ टू ड्रॉ द टेबल्स, ये जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाना है। बिकॉज हमारे अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू टेबल्स बनाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो टेबल्स बनाने के लिए यू फर्स्ट गो टू इंसर्ट, इंसर्ट बॉक्स में टेबल। नाउ यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, columns 1 2 3 4 5, वी वांट 5 कॉलम्स। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे टेबल 1 2 3 4 5 columns or 1 row you can select, or you can take this one, insert table. Here you can select the columns, number of columns जितने भी आपको चाहिए आप यहीं से select कर सकते हैं, and number of rows you can select here. You want 5 rows, 6 rows, so yeah. So this table has been drawn. Now you want to change इसका, यहाँ से ऊपर आ गए ऑप्शंस आ गए हमारे पास। यू कैन चेंज दी फॉर्मेट, क्योंकि अभी इसमें देखो आपके कॉलम्स में जो लाइंस है वो अभी प्रॉपर्ली अपीयर नहीं हो रही। तो इफ आई सिलेक्ट दिस वन, अब नाउ दीज आर अपीयरिंग। नाउ यू कैन इंक्रीज द width or decrease the width of the column। 8 का हमें छोटा चाहिए, पर्टिकुलर्स बड़ा चाहिए, लेजर फोलियो छोटा चाहिए। ये सिर्फ माउस से कर रहा हूं मैं जी, सिलेक्ट करके ड्रैग आप कर सकते हो। देन अमाउंट का और ये, देन यू कैन टाइप एनीथिंग ऑन इट। पहले आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। तो ये जरूरी नहीं अकाउंट्स में, यू कैन यूज इट एनीवेयर, जहां भी आपको टेबल्स ड्रॉ करने यू कैन यूज इट। अमाउंट, बट यू कैन नॉट गिव एनिमेशन टू द टेबल। टेबल में जब एनिमेशन दोगे तो टेबल में एनिमेशंस नहीं आएगा, वो ऑल विल अपीयर एट वंस। So for that you have to now I want to give heading to this. So first go to insert again, insert, then again select a text box। text box को मैंने यहाँ डाल दिया। अगर आप नीचे भी करोगे then you can drag it to here। ऊपर मैं डाल देता हूँ जर्नल, then I select it and I make it bold। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, and you can fill the shape also। जर्नल की here shape fill आ गया हमारे पास। you can fill shape with any color। so suppose I want to take yellow, so yeah, you can shape the outline। so by again if you want to use the box वाला, जो मैंने अभी आपको ये बताया था कि this one इसमें boxes वाला है, तो if you want to use the box तो you can simply write it here। कोई भी जर्नल एंट्रीज यहाँ लिख लो। मैं suppose I am taking this one, मैं ऑलरेडी टाइप की हुई है here। you can type it here and then you can take it here, paste it। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, तो यू कैन यहाँ पे आपको क्लिक कर दें, देन प्रेस एंटर, तो ये इसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी। तो यू कैन इंक्रीज द विड्थ बाय सिंपली क्लिकिंग, और यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस आल्सो। नाउ आई प्लेस दिस टेक्स्ट बॉक्स हियर, यहाँ आ गया। नाउ इसको आप यू कैन इंक्रीज द साइज, यहाँ से आप इसका साइज यहाँ तक कर,
देन स्पेस बार से इसको like this. Yeah, yeah. Now how it will appear? It will appear like this. तो जब क्लिक करोगे then this item will appear. अच्छा, इसमें अगर आप कहते हो सर एनिमेशन हमने अलग से नहीं डालने, तो यू कैन यूज द बॉक्स मेथड ऑल्सो. जो मैंने बॉक्स बना के किया था वो भी आप कर सकते हो. अच्छा, एक अभी आया सर, हाउ क्वेश्चन एंड टेबल अपीयर्ड साइमल्टेनियसली. जी. नाउ देखो इसका आई कैन चेंज द शेप. मैं इसकी शेप ऐसे कर देता हूँ. नाउ आई कैन reduce the size. इसमें अब इस हमें अच्छा, अब सर ये सपोज इधर आ गया. नाउ आई वांट टू यूज अनदर ग्राफ. तो सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, ये वाला मैं ले रहा हूँ. सो दिस इज ऑलरेडी ये आ गया. कंट्रोल V. सो यू कैन प्लेस इट हियर. तो ये दोनों साइमल्टेनियसली आ गए हमारे पास. नाउ आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस. तो ये यहाँ पे आ गया हमारा. तो फर्स्ट एंट्री के सामने ये आ गए हमारे पैड. Now if I want to use journal ledger, suppose इसके साथ ledger भी बनाना है, तो you can draw another table here. Again go to insert, then table में आके insert table, उसमें 8 कॉलम्स होंगे हमारे. ये आ गया. Now I can change the shape. Suppose I'm taking this one. So you can show the children ledger also. Ledger भी साथ साथ ही आपके आ जाएगा. Okay, how this entry will appear in the ledger? तो ledger में भी आप इसको साथ साथ ही डाल सकते. तो ये सर एक फ्रेम में हम अलग अलग टेबल इंसर्ट करके वो चीज कर सकते हैं. वी कैन ब्रिंग द क्वेश्चन. हाँ, वही कितने भी टेबल्स आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस.
तो मैंने भी तो वे किया हुआ सर, उसमें एक ही टेबल में मेरे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एडमिशन का जो हमें नॉर्मली, ये देखो नॉर्मली हमारे एक बोर्ड पे जो हमारा व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर एक टेबल, एक के ऊपर सर हमारे इतना पूरा नहीं आता, कहीं नहीं आता, वो हमें थोड़ा खिच-खिच करके बनाना पड़ता है। एंड इवन वी कैन नॉट शो द वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स के लिए हम इधर-उधर एक जगह ढूंढते हैं फिर। ये बड़ा क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जो है एक ही स्क्रीन पे एक ही साथ में आ गया। हाँ, और ये जो ऊपर ओवरलैप हो रहा है सर, ये ओवरलैप जो है इट इज फॉर एनिमेशन। ओके, जब मैं शो करूंगा, ये देखो जब ये क्वेश्चन अपीयर होगा बच्चों को, इट विल अपीयर लाइक दिस। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, वो एनिमेशंस हैं। अच्छा, वो तभी आएंगी जब वो एनिमेशंस मैं यूज करूँ, मतलब जब क्लिक करूंगा। नाउ यू कैन, पहले आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बच्चों से आराम से डिस्कस कर लो, दे कैन ड्रॉ द फॉर्मेट्स, यू कैन आस्क देम टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स। तो फर्स्ट पहले देखो, ये पहले फॉर्मेट्स ऐसे ड्रॉ हो गए, बच्चों ने फॉर्मेट्स ड्रॉ कर ली, तो तब तक आपके पास टाइम है, तो हम ड्रॉ करते रहते हैं। नाउ आफ्टर दैट यू कैन इजीली एक्सप्लेन one by one. If I used to take items one by one from the balance sheet. पहले liabilities, then assets को cover करो, then come to the adjustment part. So it's your choice, whatever you want, you can make it according to your choice. किसी दूसरे की यूज करने का मतलब होता है कि आप उसकी चॉइस से चल रहे हो, but how you want to teach your students, it depends upon you. ठीक बात। तो रेडीमेड आपको मिल तो जाएंगी, सब पीपीटीज मिल जाएंगी रेडीमेड आपको, पर वो उसमें आपको पढ़ाने में वो मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू वांट टू टीच द वे यू वांट, आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं। यस, बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो आपने बजट लाइन का वो शिफ्ट दिखाना है, वो कैसे दिखा सकते हैं? उसके अंदर सिर्फ अपने को लाइन का मूवमेंट दिखाना है, बजट लाइन। यस सर, वो लाइन के ऊपर जाके आप एनिमेशन डालोगे बस। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि वो लाइन जो शिफ्ट हो रही है वो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, एक मिनट होता है, वो थर्ड वाले में ना बजट में थी वो। हाँ, ये लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, यही सर एनिमेशन। हाँ, एनिमेशंस में भी ना हमारे पास ऑप्शन होती है, मैं बताता हूँ। ये जो जैसे यहाँ जा रही है, ये शिफ्ट नहीं हो रही सर, ये सिर्फ एनिमेशन। ये मैं एक और बताता हूँ, ये एनिमेशन कैसे दी हमने। फर्स्ट सपोज इसको मैं कर देता हूँ, एनिमेशन देख लो आप। नाउ इसमें देखो, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। लाइन ड्रॉ कहाँ से करनी है आपने? लाइन इंसर्ट में जाके शेप्स में यू कैन सिलेक्ट दिस लाइन। तो ये मैंने सपोज लाइन सिलेक्ट की, आई वांट टू ड्रॉ इट हियर। तो ये मैंने ये, ठीक है। नाउ यू कैन चेंज द, इसका विड्थ वगैरह जो भी आपने चेंज करनी है, यू कैन चेंज इट। ये मैंने डार्क कर दी और मोटी लेनी है मैंने, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये इसको, तो ये मैंने ले ली। नाउ एनिमेशंस में जाके इसको पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दिस वन, गो टू एनिमेशन। एनिमेशन में सपोज मैं इसको अपीयर वाला दे रहा हूँ, ठीक है। अपीयर वाला आ गया। नाउ यू कैन सी ये 7 नंबर पे आएगी। ओके, शिफ्ट दिखा दिया। हाँ, फाइन, सिंपल एनिमेशन दी है। अच्छा, इसकी और भी होती है एनिमेशंस में, इसमें ठीक है। हाँ, ये फ्लाइन में है कि कहाँ से आएगी है। तो इफेक्ट एनिमेशन ऑप्शन में जाके क्या आपको ये कहाँ से चाहिए? फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, कहाँ से ये लाइन आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं फ्रॉम टॉप लेफ्ट लेता हूँ तो इसकी आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बताना पड़ता है ना कैसी शेप कहाँ से आई है,
लेफ्ट से राइट आ रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, तो यू कैन, ये देखो अब लेफ्ट से ऊपर से आएगी, ये आ गई। फिर मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये ऊपर से। नाउ इसके बाद आप इसका कहते हो सर बड़ी स्पीड से आ रही है, यू कैन चेंज द, इसका वो स्पीड भी चेंज कर सकते हो आप, ये ड्यूरेशन जो है ये आप डिले कर सकते हो यहाँ से। एंड ऑप्शंस में, इफेक्ट ऑप्शंस में, और फिर हमारे पास और सारी है, कहाँ से आपने लाना है, बॉटम से लाना है, कहाँ से लाना है। अच्छा, इसमें इंसर्ट वाले में एक और शेप भी होते हैं ना, हमारी इंसर्ट कर्व वाली होती है जो बनानी मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स को बताओ। ये आप इसको जितना भी बड़ा कर लो। तो ये कर्व भी आपने अगर ऐसे बनाने तो यू कैन यूज दिस आल्सो। आप इसकी शेप जैसे मर्जी आप चेंज कर सकते हो। इसकी मैं तो ये आ गया हमारा। इसका नाउ यू कैन गिव एनिमेशन टू इट। तो क्योंकि ये कर्व बनाना इकोनॉमिक्स में काफी जरूरी होता है, इसमें आई थिंक यू शेप भी होते हैं, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द वेबसाइट आल्सो, तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा वहां से, तो यू कैन यूज इट। अब इसमें और बहुत सारी शेप्स हैं, यू कैन यूज दिस एरोज, एक ये वाली शेप भी है, तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ओके तो अभी तो इतना टीचर्स अभी थोड़ा कर लें, जी जी। देन नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और लेके आऊंगा। आज तो हमारा टाइम उसमें भी काफी हो गया खराब। जी जी हाँ, वो एक बार अब शुरू में था, बाकी अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सर अपन नेक्स्ट टाइम क्या चीज अपन डिस्कस कर सकते हैं, और एनी सजेशंस फ्रॉम दी अटेंडीज आप क्या चाहेंगे, और yes, आप सजेशन दें अपने चैट बॉक्स में, आप नेक्स्ट सेशन किस चीज में चाहेंगे। अच्छा, वैकॉम फॉर ऑनलाइन टीचिंग, वैकॉम इज द वो टैब होता है ना जिसमें अपन yes, वो तो टैब है, राइटिंग का होता है। ओके, प्रेजी के ऊपर बोल रहे हैं, कार्टून Prezi, हाँ Prezi I will take, if you want I will take Prezi also, I can take, we'll take Prezi, cartoons editions, full-fledged problem, please teach that. Okay, working notes का कैसे पूछ रहे हैं, एक वो भी था। इसका सर वर्किंग नोट इसमें अकाउंट्स में आपने कहीं दिखाया होगा। सर ये देखो, सपोज लाइक दिस वन, ये ऑलरेडी इसमें है ना ये बॉक्स, तो वर्किंग नोट्स में, हाँ वर्किंग नोट्स में नथिंग इज न्यू, जस्ट गो टू द इंसर्ट में जाके यू गो एंड इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया आपने, देन उसमें आप कुछ भी टाइप कर लो, देन उसके बाद जो एनिमेशन देनी है ना, वो एनिमेशन का थोड़ा सा है, ओके, इट विल अपीयर एंड इट हैज टू डिसअपीयर आफ्टर दैट। ओके, ठीक है, सपोज आई टेक दिस वन और यही वाला ले लेता हूँ। ओके ओके, अब देखो इसी को ले लेते हैं सर, लेट इट टेक दिस वन। अब देखो इफ आई टेक गो टू द एनिमेशंस, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका एनिमेशन नंबर 1 है,
ठीक है. आई थिंक वन नंबर एनिमेशन यू कैन इजिली गिव, फ्लाई इन वाला आपने दे दिया, ठीक है. एंड यू वांट कि दिस बॉक्स विल डिसअपीयर आफ्टर आई स्टार्ट टीचिंग दिस. अगर मैंने नेक्स्ट बॉक्स जब ये आएगा तो आई वांट दिस बॉक्स टू गो आउट. सो फर्स्ट सिंपली गो टू द एनिमेशंस, गो टू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एग्जिट वाला ऑप्शन आएगा, एग्जिट. तो एग्जिट वाले में आके यू कैन सिलेक्ट एनी वन. सपोज आई सिलेक्ट दिस फ्लोट आउट, तो ये फ्लोट आउट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है. अब नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस बॉक्स, तो इसमें एक और भी देना, चलो मैं इसको एक मिनट, दिस इज वन स्टेप्स में आ गया. देन आई वांट टू गिव न्यू वन. जो नेक्स्ट वाला आप दोगे उसका आपको वो चेंज करना पड़ेगा. फ्लाई आउट ले लिया मैंने, ओके. सो आप देखो इसको, अगर मैं देखता हूँ इसमें, अब इसमें जो फ्लोट आउट वाला आ गया, अभी फ्लोट फ्लाई इन वाला हट गया, वो पहले लगा देते हैं. मैं इसको अलग से दिखा, फेड आउट ये 3 पे हो जाएगा. ओके. एक मिनट में करती हूँ, ये फ्लोट है. इसको नंबर 1, ये हमने 1 दे दिया. देन इसी को ये हमने मोर एग्जिट, मैं इसको तो ये पहले है, देन इट इज डिसेबल. तो आपको एग्जिट वाला देना है, जो मैंने इसमें आप पूछ रहे हो, ये मैंने दिया यहाँ पे. ये वाला अब देखो, ये सर ये आगे ये सब आ रहे हैं. नाउ फर्स्ट इसमें है क्वेश्चन साथ में नहीं दिया मैंने जी. ये दिस इज अनदर टेक्निक कि क्वेश्चन साथ में नहीं है. फर्स्ट आई ड्रॉ दीस, फिर बच्चों से पहले मैंने ये देखो सर, ये दिस इज द बैलेंस शीट अपीयरिंग हियर. क्या आई वांट के स्टूडेंट कैन सी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट सिर्फ ऊपर आ गई. दिस बैलेंस शीट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सेपरेट आई है. देन आई कैन यूज दिस के बदूस कैपिटल पहले कहाँ जाएगा हमारा, तो इट विल गो टू द कैपिटल अकाउंट. सेकंड जर्नल रिजर्व, ये जर्नल रिजर्व कहाँ जाएगा, ये आ गया हमारा. देन बिल्स पेपर, देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन मशीनरी, देन स्टॉक, देन डेटर्स, देन प्रोविजंस. अब नाउ इट गो आउट, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वर्किंग उसमें भी यही है, तो नेक्स्ट वाला अपीयर होगा, तो ये नेक्स्ट आ गया. अब ये हमारी उसकी वर्किंग नोट्स आ गई, गुडविल की कैसे वैल्यूएशन की है. तो यू कैन इजीली शो दीज वैल्यूएशंस. देन ये प्रीमियम आ गया इसका, एंड सेकंड इफेक्ट इसका बैंक में भी चला गया. देन इट विल मूव आउट.
तो आपको सिर्फ ये है कि मूव इन एंड मूव आउट का 2 सेपरेट एनिमेशंस देखने हैं आपको, और वो यहीं से आते हैं आपके, जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है ये देखो, इसमें आ रहा मल्टीपल, तो मल्टीपल में एक 20 है, एक 26 है, तो एट व्हाट पॉइंट यू वांट टू डिसअपीयर, तो उस टाइम पे वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक बात है। Any other question, sir? नहीं वो तो हो गया सर, है ना। और एनी अदर, तो नेक्स्ट सेशन वी कैन हैव ऑन पैडलेट पे कर सकते हैं। दूसरा आपने जैसे प्रेजी कहा, प्रेजी पे एक वी कैन हैव द नेक्स्ट सेशन सम टाइम। बट हाँ, वो मैं कर देता हूँ, बट सर इसमें पहले है कि पावर पॉइंट को अगर आप यूज करोगे तो आपको ये बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Because there are so many options here, you can convert into video also. तो आपको save as में जाके वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। You can insert your voice also. Insert में आके there are other options also. जी। You can insert voice, and even for math teachers यहाँ पे symbols और equations सब हैं, you can select these also. जी। यहाँ पे आके आपको audio, you can put your audio into it. You can record your audio, you can record your video. ठीक है। So I think we can end the session for today. जी। And बेदी सर, थैंक यू सो मच, आपका काफी टाइम ले लिया आज हमने। नो सर, नो, टीचर्स के साथ शेयर करने में कोई टाइम नहीं वेस्ट होता किसी टीचर का। मैं तो कहता हूँ और टीचर्स को अगर कुछ आता है तो they can also come forward and they can use this platform also. जी। हाँ, आप लोगों में से कोई चीज अगर शेयर करना चाहे then also you can also forward to share this one. Then we'll be troubling you again, sir. आपको फिर से हम तकलीफ देंगे। Yes sir, yes. Thank you all of you. We are ending this session today.